amongst the players as to where they are and what needs to be done, and with them being more fit, they can actually exploit it. But overall, it's something, it's like reverse sweep. People used to sweep initially, and then more often than not it was considered quite a bad shot, and now people play the reverse sweep even to the fast bowler. So the game keeps changing, and according to the demands of the game, the individuals, they keep improving their game, and this is just another you can say an area where the fielders, they have improved themselves. Like you had two fielders going to the boundary, one flicking it back, the other throwing. So all these things keep happening, and you don't know what may you see in the next 5 years' time. Captain, do you notice any change in the Rohit of 4 years ago and the Rohit of now? Well, I think if I compare, if I have to go back 4 years, it won't be a realistic comparison. The reason being, he was not really opening for us at that point of time, and we felt he was a bit of waste of talent if he was batting at 6 for us, because more often than not he was not getting enough chance to bat, and our top order was quite fixed, so we couldn't really make him play or give him enough opportunities. And that's one of the reasons why, if you see the first 40 games, you may think he has not done enough, but out of those 40 there were quite a few games where he went in to bat in the last 5 overs or 4 overs. And it's difficult, in a 5-match series, if you're playing and your top order is batting really well in India, at times you don't really get a chance to bat, and you may get a chance in the last maybe couple of matches with 10 overs to go, and it all counts as chances. So that was the time we decided, we'll try to make him an opener, and he accepted that. He did open for us in the T20 World Cup, and from that point we thought, it will be good to have him as an opener because he cuts and pulls well, and he's a natural stroke player again, which to some extent helps, if you have somebody in the top order, once he gets going, if you can play long innings. Last 6 in English. Just a one in next. Who do you expect to win tomorrow, and if it is Australia, have you ever felt better prepared? धोनी ने क्षेत्र रक्षण की बात की। वीरो, आप सुन रहे हैं ना, मैं क्षेत्र रक्षण बोल रही हूँ। पर कुछ समय पहले टीम इंडिया को एक अच्छा फील्डिंग साइड नहीं बुलाया जा सकता था। यशपाल जी, ये चेंज कैसे आया है टीम इंडिया में, क्योंकि अचानक और खासकर इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को सबसे बेस्ट फील्डिंग साइड्स में से गिना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये मेहनत है, जिस तरह से खिलाड़ियों ने मेहनत की है, और जो गलती 1-2 मैचों में हुई थी, कैचेज छोड़े गए, आज मुझे कोई कमी नहीं दिखाई दी। कैचेज पकड़े गए, बहुत बेहतरीन फील्डिंग की हुई है, और उस तरह से जहां जहां कमी थी वो भरपाई हो चुकी है, क्योंकि अब जैसे जैसे अब आगे बढ़ना है, सेमीफाइनल में जाना है और कड़ा मुकाबला होना है, तो उसको देखते हुए ये कमी की भरपाई होनी बहुत जरूरी थी, और ऊपर सभी खिलाड़ियों ने अच्छा किया। चेतन जी, शिखर धवन ने ज्यादा रन्स नहीं बनाए, पर उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा। आप उस कैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और एक और कैच था जो धोनी ने पकड़ा था, बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट कैचेस इस वर्ल्ड कप का देखा जाएगा। ने बहुत बढ़िया कैचेस थे। अगर दोनों कैचेस की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी लेफ्ट पे डाइव करना एक विकेट कीपर के लिए, और कोई स्लिप वहां पर नहीं, बहुत अच्छा। मैं कहूंगा शिखर धवन का कैच बहुत ही लाजवाब, अपने आप को मतलब संतुलन में रखना, बॉल को छोड़ना, बाहर जाकर अंदर आना, और मोहम्मदुल्लाह का कैच था, मतलब जिस प्लेयर ने पिछले 2 मैचेस में 2 शतक लगाए हैं, उनका कैच उन्होंने पकड़ा। तो यकीनन एक गेंदबाज के लिए कितना खुशी का समय होता है। मैं एज ए गेंदबाज आपको बता सकता हूं, जब ऐसे कैचेस पकड़े जाते हैं, तभी मैं कह रहा हूं ना, आपके गेंदबाज किस लय से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फील्डिंग बहुत ज्यादा मदद कर रही है उनकी, और अगर फील्डिंग आपकी मदद करेगी तो गेंदबाज तो वैसे ही शेर बन के गेंदबाजी करेगा। हर समय हम कहते हैं ना, उसकी पूंछ ऊपर रहेगी। तो आजकल हमारे गेंदबाज 7 मैचेस में 70 विकेट्स का कारण ही यह है कि आपकी फील्डर्स ने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया है गेंदबाजों को। जी, आजकल हमारे फील्डर्स इतनी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं क्योंकि बहुत फिट हैं, और फिट हैं क्योंकि बहुत यंग हैं। और इस यंगिस्तान के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ मीत ब्रदर्स अंजान से, क्या कहेंगे आप हमारे फील्डिंग यूनिट के बारे में, और क्या उनके लिए, हमारे यंगिस्तान के लिए कुछ आपने हमारे लिए तैयार किया है, कुछ गाना? बिल्कुल, गाने तो बहुत सारे तैयार हैं, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। हम लोग जैसे हमारे ये म्यूजिक हमारी रगों में बसा हुआ है, वैसे क्रिकेट हमारे दिल में बसा हुआ है। और हम लोग अभी सलमान भाई का साथ हमने गाना किया था हैंगओवर,
और उसका हैंगओवर जो है आज पूरे हिंदुस्तान पे क्रिकेट का छाया हुआ है, धोनी का छाया हुआ है। और लाइक अभी जैसे अब इंग्लिस्तान की बात कर रहे हैं, सो वी ऑल्सो हम भी बहुत इंस्पायर होते हैं विद द कैप्टन लाइक धोनी, बिकॉज वो हमको एक चीज उनमें बहुत अच्छी लगती है दैट 100 आज उनकी विक्ट्री पूरी हो गई, लेकिन आप उनकी भाषा सुनिए, कितनी नम्रता और कितने हम्बल थे वो। तो ये जो चीजें देखने को मिलती हैं कि इतने सक्सेस के बाद भी जब आदमी आज एकदम जमीन से जुड़ के रहता है, तो ये चीजें हेल्प करती हैं एंड वी कंप्लीटली बिलीव इन इट। हमारे फादर हमें कहते थे कि बकरा जो होता है जिंदगी भर मैं करता और करता रहता है। सो ये मैं जो होती है आदमी को खत्म कर देती है, और ये हमें सीखना चाहिए धोनी से कि आज देखिए कितनी हम्बल स्पीच दे रहे हैं वो। सो उनका जो हैंगओवर है वो पूरे देश पे है, और मीद्रो रंजन उनको आज ये डेडिकेट करते हैं। तरीके से उन्होंने 100 मैचेस जिताए हिंदुस्तान को, वैसे हम चाहते हैं हम 100 गाने बनाए, वो भी सुपर हिट, अगर 100 सुपरहिट गाने बनाए, और ऐसे ही हमेशा शुक्रिया करते रहे ऊपर वाले। और लोगों का ऐसे हैंगओवर होता रहे। जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, बाकी टीमों से इंडिया निकल गई है आगे हो। जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, बाकी टीमों से इंडिया निकल गई है आगे। मैंने देखा तुझे हरा के, चौकों की छड़ी लगा के, छक्कों की लड़ी लगा के, पर दिल से कभी न उतरे हैंगओवर इंडियन क्रिकेट टीम का। हैंगओवर हम पे धोनी का, हैंगओवर इंडियन क्रिकेट टीम का, हैंगओवर हम पे धोनी का। एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको एक बार हम फिर मेलबर्न लेकर चलते हैं कप्तान धोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तौल नहीं सकते कि इतने विकेट मिले हैं इनको, बट उन्होंने जिस तरीके से प्रेशर मेंटेन किया है और क्रिएट किया है, जिसके कारण दूसरे फास्ट बॉलर्स को विकेट मिले हैं, आई थिंक उनका भी जो रोल है मिडिल ओवर्स में बहुत क्रूशियल रहा है। एमएस, विराट के बारे में पूछना चाहूंगा। पाकिस्तान मैच के बाद उन्हें स्टार्ट मिला, आज शायद आज नहीं मिला, स्टार्ट उन्हें मिला है, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। क्या अच्छी बॉलिंग को आप बोलेंगे या कुछ पोस्ट शॉट सिलेक्शन भी रहा है? आई डोंट थिंक ऐसा कोई पुअर शॉट सिलेक्शन रहा है। अगर आप देखें तो एक डोमिनेंट बैट्समैन है, जो जाके अपना स्ट्रोक्स खेलना पसंद करते हैं, एंड आई डोंट थिंक ही हैज बैटेड बैडली। जब मौका मिला है, स्टार्ट मिला है, तो उन्होंने रन भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार वो जब बैटिंग करने गए हैं तो 100 किए हैं। मे बी जो टेस्ट सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, तो हम सब कुछ उससे रिलेट कर रहे हैं कि यार हर इनिंग में 100 होना चाहिए। तो काफी डिफिकल्ट होता है, बट एट द सेम टाइम आप प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो एंड आई फील ये सारी चीजों पे वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। एंड जस्ट अराउंड द कॉर्नर, एंड बिग प्लेयर्स, दे ऑलवेज स्कोर इन बिग गेम्स। लास्ट राजाराम वही उमेश यादव की गेंदबाजी के बारे में आज क्या कहेंगे आप? आई थिंक तीनों फास्ट बॉलर्स हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। उमेश ऑफ कोर्स इन तीनों में सबसे तेज डालते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो हमने देखा है कि स्पेशली अभी उस फेज में चल रहे हैं जहां पे उन पे विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। काफी अच्छे एरियाज में बॉलिंग कर रहे हैं, और जब आपके पास वो एक्स्ट्रा पेस होता है तो बैट्समैन के जो गलती करने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो आई फील ओवर द इयर्स ऑन एंड ऑफ उमेश ने काफी मैचेस खेले हैं, बट अभी रेगुलर टीम का पार्ट हो गए हैं। एंड आई थिंक एक ऐसा रीजन जिसके कारण वो हमारे टीम का रेगुलर पार्ट है कि उनकी जो कंसिस्टेंसी है बॉलिंग में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पेस हमेशा से उनमें था, 140 के आसपास हमेशा डालते थे, अभी ऑफ कोर्स 145 के आसपास डाल रहे हैं, बट जो कंसिस्टेंसी है एक जगह बॉल डालने की वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। हमारे बॉलर्स की और तारीफ हम करेंगे, बल्कि बैट्समैन की भी करेंगे, इस मैच की भी करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप आपने हमारे साथ नहीं देखा तो कहां देखा, क्या देखा।